You ask me who is building the quality in the product is the person who is operating the machine. So who should be the skillful? He should be the skillful. What I feel is that आदमी ना मैनेजर तो बन जाता है, मैनेजर से जनरल मैनेजर बनना एक अलग चीज़ है, जनरल मैनेजर से एवीपी बनना एक अलग चीज़ है, एवीपी से प्रेसिडेंट बनना एक अलग चीज़ है और एक सीईओ का रोल करना अलग चीज़ है. तो एट दिस स्टेप वन शुड लाइक unlearn the skill set which he has and relearn the skill which is required for the next role. People also feel FOMO, fear of missing out. People will forget one thing. उनको लगता है ना उनके हाथ से ना कंट्रोल निकल जाए. पहली बात तो कंट्रोल और मॉनिटर में फर्क है. आप कंट्रोल करने को जाएंगे तो यू आर गोइंग टू किल द क्रिएटिविटी ऑफ योर पीपल. आप मॉनिटर करें उनको. When you say that how it shouldn't happen, so is there a process then you want to create? आपको रूट कॉज अगर पता चला कि आप 50% प्रॉब्लम सॉल्व, अब उसके इन एंड अराउंड में आपको सिस्टम बिल्ड करना है कि वो प्रोसेस दोबारा ना हो. वहाँ जाकर के ना लोग बोलने लगे भाई आगे चल के तो तुम हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट ही बनोगे. सो देयर वाज एन टेलीग्राम व्हिच आई रोट टू माय फादर. आई एम लाइक नॉट interested to continue this course and I'm coming back home. And my father wrote me back, please continue with zeal and courage. From the shop floor to strategy boardroom, our guest today has lived every chapter of pharma manufacturing leadership. Mr. Abhay Kumar Srivastav, President, Operations at Mankind Pharma, is known for elevating manufacturing plants, championing innovation, and empowering people to thrive in evolving industry landscapes. His passion for shaping the future of Indian pharma makes this conversation one you won't want to miss. So welcome, Mr. Abhay. Thank you so much. Thank you for inviting me. So how are you doing? I'm doing good. Thank you so much. How was your experience at Pharma India 2025? I think right now things are quite flat, but the challenging times were always been there. So it is a cyclic in nature. So things are flat when it comes to US and also domestic for top 10 companies, but it will like flourish in times to come. So your session just has completed. So can you share some feedback on your session? How was it? The session was very nice. I think for the first time आप लोगों ने microbiologist को बुलाया है. And this is something which I appreciate because right now they are holding a very important position and a lot of empowerment is needed to them. And I think as the industry is moving from generic to more complex molecule. जो पहले हम लोग सिंपल इंजेक्टेबल बनाते थे अब बायोलॉजिक्स की तरफ जा रहे हैं. तो नाउ वी नीड वेल ट्रेन्ड, वेल इन्फॉर्म्ड, वेल empowered microbiologists. So I see this event slowly empowering the microbiologist. Empowering the microbiologist. Yeah, आपने उनको एक प्लेटफॉर्म तो एटलीस्ट दिया ही है. And they will start thinking that they are very important part of this industry. And मैंने अपने पैनल में या एज ए स्पीकर मैंने एक बात कही कि बाकी सब इंडस्ट्रीज में माइक्रोबायोलॉजिस्ट स्पेशली फूड इंडस्ट्री में या फिर डेयरी इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं. तो स्टेराइल ऑपरेशन जो फार्मा में होता है वो वहां पर क्यों नहीं. और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया जहां पर दे विल फील that we are also empowered. True. So you have a remarkable journey from Bit Mesra to leading operations at Mankind Pharma. What have been the most defining moments in your career that shaped you as a leader? I would say right from when I joined B Pharmacy. So actually what happened during my B Pharmacy, I was like not so interested to join the B Pharm. Is it? Yeah. So I did my class 10th, class 12th, was confused like a very typical middle class student. And suddenly I filled so many forms and I was so confused that the same year I gave an engineering entrance as well as the medical entrance and also this pharma entrance.
got selected for BIT Mesra and I went there and suddenly what I found, वहाँ जाकर के ना लोग बोलने लगे भाई आगे चल के तो तुम हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट ही बनोगे. And I was like jabbed. When I wrote, in my times there were like no mobile phones and telephones was a luxury. So I wrote to him that I'm like not interested to continue this course and I'm coming back home. So there was an telegram which I wrote to my father and my father wrote me back, please continue with zeal and courage. तो करेज तो समझ में आया, झील तो समझ में नहीं आया मेरे को. उस वक्त मेरी इतनी अंग्रेजी भी सही नहीं थी, बट आई फेल्ट दैट कि पापा बोल रहे हैं कि तुम रुको वहां पे. एंड देन लेटर केम, इट वाज अ वेरी बिग लेटर. इन द लेटर इट सेड दैट कि तुम बताओ अबे आगरा में सबसे अच्छी दुकान जूते की कौन सी है या फिर मिठाई की कौन सी, एंड आई नेम देम. एंड देन ही सेड कि भाई एक काम करो, तुम जो पढ़ाई कर रहे हो do the best in that, correct? And that's how it all started. I was a very average student. I secured 63% marks in my class 10th, 74% in class 12th, but when it came to B Farm I topped my batch with 87.6%. उस वक्त ये GPA system नहीं होता था, percentage होता था, and to get 87.6% is like a big thing in my time. And this is how I started. And right from that day when my father wrote me that be the best, I started working to be best in my studies and also the best in my career. The second thing was that, like, since I was like coming from a very humble family, so the government, because my father was in Air Force, so there was a lot of spent from the government of India and also from the Indian Air Force. Who sponsored my studies in BIT Mesra. So कहीं ना कहीं मेरे को लगता था कि मेरे पर एक भार है, एक लोन है, तो मैं उसको वापस चुकाना चाहता था. And for me was that कि I stick to this profession and contribute to this profession. So I went into manufacturing. So that was the second thing. So that I can give back to my country. When I joined manufacturing, it was in a very, I would say in 1991, it was, I think, on a very, I would say, very shallow start. Humble भी नहीं बोलूँ मैं, बहुत shallow start है, because the things were being mainly controlled by the private business. And pharma is a very fragmented industry. Generally, the Tatas and Birlas don't put money in such kind of business. So there were really small players. So it all started with small players. But thanks to the fraternity, the pharma fraternity, who were like graduating during the time of 90s, who have contributed so loud and large that we have become a pharma for the world. तो मैं क्या बोलूँ कि उन्होंने एक सही माहौल क्रिएट किया भारत के लिए, जहाँ पर मेरे जैसे सोचने वाले बहुत से लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग में घुसे. They have changed the things for India, that India has now a global pharmacy, and also that in that fragmented industry, वो जो छोटे छोटे लोग थे उसमें जो सन फार्मा जैसे लोग निकल कर आए या फिर मैनकाइंड जैसे लोग निकल कर आए, जिन्होंने बहुत छोटा स्टार्ट किया, and this is how they become very bad. So that was the second thing. The third thing was that what I also felt was that as an industry we were not taking any learning from the other industry. अच्छा, लेते ही नहीं थे. उनको लगता था कि फार्मा वाले फार्मा में ही इतना इनब्रीडिंग हो गया था कि धीरे धीरे वो लोग जेनेटिकली थोड़ा सा वीक होने लगे, ऐसा मेरे को महसूस होता है. देन सडनली मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी जहाँ पे जो मेरा बॉस था IIT कानपुर का था, और जो उसका जो बॉस था वो IIT खड़गपुर का था. और मैं फार्मेसी पढ़ा हुआ बंदा जब उनके अंडर में गया तो उन्होंने मेरे को एक बड़ा ब्रॉड पिक्चर दिया, और फिर मेरे को पता चला कि बाकी इंडस्ट्रीज भी रेगुलेटेड होती है, बाकी इंडस्ट्रीज भी हमारे जैसे होती है. भैया चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो कार हो, अगर उसका भी एक्सीडेंट होगा तो उसमें भी बंदे मरेंगे, तो उनको भी कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं. एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग एट द अदर इंडस्ट्रीज फॉर लर्निंग. सो आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, जहाँ से मैंने वहाँ पे TPM, लीन सिक्स सिग्मा जो है वो पकड़ा. आई स्टार्टेड लुकिंग एट द एयरलाइन इंडस्ट्री, जहाँ पर एसेट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है,
वो अपने एयरक्राफ्ट को किस तरह मेंटेन रखते हैं वो मैंने सीखा। डेयरी इंडस्ट्री से सैनिटाइजेशन वगैरह सीखा, बहुत सारी इंडस्ट्री से बहुत सारे सबक लिए, एंड आई स्टार्टेड bringing all these concept into pharma. So that is something which I did very differently. Then I brought I would say Lean Six Sigma, because जब मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में था तो मैंने उनको देखा कि वो लीन सिक्स सिग्मा का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत इफेक्टिवली करते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. So I started bringing that Lean Six Sigma, and slowly I'm a very big fan of Lean Six Sigma, because that not only improves the quality of the product, but includes the, I would say, engage the workmen. वो बंदों को भी engage करना शुरू कर देता है. And once you are like engaging them, educating them on Lean Six Sigma, उनकी competency पे मैं जब काम करता हूँ तो वो लोग एक skill उनको आना शुरू जाता है. जब उनकी कॉम्पिटेंसी इंप्रूव होती है, उनको क्लैरिटी आती है. उनको क्लैरिटी आती है तो वो प्रोडक्ट, कोई भी प्रॉब्लम है प्रोडक्ट में, वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और ये लीन सिक्स सिग्मा से वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उनका सॉफ्ट बिहेवियर भी इंप्रूव होता है, बिकॉज दे हैव टू लाइक क्रॉस फंक्शनली नेगोशिएट विद ऑल द पीपल सिटिंग इन द रूम. तो उनका वो सॉफ्ट स्किल इंप्रूव होना शुरू हो जाता है. फिर होता क्या है कि वो कुछ एकम्प्लिश करते हैं, उनको और कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनको और कॉन्फिडेंस आता है, और कन्विक्शन आता है, और कन्विक्शन आता है, और ये सबको अगर आप जोड़ेंगे तो इट बिकम्स अ कल्चर. तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मुझसे लोग पूछते हैं कि कल्चर कैसे कंपनी में बिल्ड किया जाए. आप भाई एक काम करो, जो लास्ट आदमी है उसकी कॉम्पिटेंसी को इम्प्रूव करना शुरू करो, अपने आप कल्चर आना शुरू हो जाएगा. तो दिस इज द थर्ड एंड द, आई वुड से दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव डन वेरी डिफरेंटली इन माय करियर. Great. Because what happens in organizations, people, the higher layer of the organization, mostly they take care of the immediate lower level of the organization. But it is very important कि जो सबसे last इंसान है, if that person knows what is the vision of the organization, I think वो फिर हम ऐसा समझ सकते हैं सारे सबको पता है कि we are aligned to the vision of the organization. Actually, ना चक्कर क्या है? If you ask me, who is building the quality in the product is the person who is operating the machine. So who should be the skillful? He should be the skillful. Who should be motivated? He should be motivated. Who should be engaged? He should be engaged. आप इस बात को पूरा अप्रिशिएट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट. आपका काम नहीं है, वो बंदा प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी कर रहा है, तो आपको उन पर काम करना है. आपका काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो एनवायरनमेंट, वो इकोसिस्टम बनाना है जहां पर वो हमेशा लर्न करते रहे. तो मेरा काम, अगर मुझसे पूछो तुम्हारे कोई काम है भाई, तुमने, हाँ मेरा ये काम है, मेरा क्या है, एक लर्निंग इकोसिस्टम रखना जहां पर उनकी कॉम्पिटेंसी हमेशा इंप्रूव होती रहे. और मेरा कोई काम नहीं है. सर, rather than giving them a checklist, उससे अच्छा उनके सॉफ्ट स्किल्स, उनके कॉम्पिटेंसी पे we should work. Right. I fully agree with to this point. So sir, when you started young, how did you stay motivated? I stayed motivated. There were 3-4 things. The first, I told you that मेरे को लगता था कि गवर्नमेंट ने मेरे पर पैसा लगाया है तो भाई मेरे को have to like give back to the government. So that was, and I didn't wanted to move into marketing and other, because that for me that was not the service to the people. That was a point one, number point. Okay. Point number two is that I felt that, and during my time there were a lot of graduates from other, like normal graduates being heading the department, the companies, and their influence was very high. So we just wanted to replace them, so that the real pharmacist people start coming at their position and start taking the decision. So this is how I kept myself motivated, that the pharma fraternity should start doing the decision making, so I shouldn't quit. The third thing is that I would say to build the right quality and to bring the science into whatsoever I'm doing,
kept me motivating when I started my career. In the middle of the career, so data which I was like collecting and analyzing and giving some output kept me motivating, because I did my Six Sigma and Lean, and slowly I was like progressing. And now uh, uh, educating or keeping a learning environment for my people is like motivating me right now. Great. 3 अलग-अलग समय और 3 अलग-अलग Motivation. motivational force. Great. So, when you look back, what were the key decisions that help you transition from an operations execution to strategic business transformation? Yeah, good. Actually हुआ क्या कि तो एक जो पहला चीज जो मैं अभी भी करता हूँ, आई ऑलवेज व्हाट आई फील इज दैट आदमी ना मैनेजर तो बन जाता है, मैनेजर से जनरल मैनेजर बनना एक अलग चीज है, जनरल मैनेजर से एवीपी बनना एक अलग चीज है, एवीपी से प्रेसिडेंट बनना एक अलग चीज है, और एक सीईओ का रोल करना अलग चीज है. तो एट दिस स्टेप, एट मैनेजर, at GM, AVP, and a president, one should like unlearn the skill set which he has and relearn the skill which is required for the next role. Okay. हाँ, आप मैनेजर बन गए, आप एजीएम और जीएम, आप डीजीएम आप संभाल सकते हो, लेकिन जीएम में जो चीज रिक्वायर्ड है वो एक अलग है. तो जब मैं जीएम बना और मेरे को लगा यार, आई थिंक बोलते हैं ना वो जो बेसिक इंस्टिंक्ट होती है वो हमेशा आपको किकिंग करेगी लोअरली जॉब करने के लिए, कि भैया मैं ये करूं. और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है लोगों से. वो क्या बोलेगा, वो फिर से शॉप फ्लोर में जाएगा और वो हर एक चीज में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा जो कि उसका रोल नहीं है. तो ये चीज को अनलर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये 4 पड़ाव है जहां पर एक नए स्किल सेट की आवश्यकता होती है. तो एक तो ये चीज है कि आपको हर एक स्टेप पे, मैनेजर से जब आप जीएम बने या जीएम से एवीपी बने या एवीपी से प्रेसिडेंट बने, यू नीड टू अनलर्न and then relearn the new skill set. That's point number 1. The point number 2, slowly you should inculcate a habit of solving the problem. आपको ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना है, क्योंकि आपको ये मान लेना है कि आपकी तनख्वाह सिर्फ आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की वजह से ही मिल रही है. And if you're not solving the problem of your people will neither respect you, nor the organization is going to respect you, and nor you are doing justice for what are we been paid. तो इसलिए आपको ये करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आ जाते हैं कि जब एबीपी तक आ जाते तो ठीक है, लेकिन एबीपी से आप जब सीनियर पोजीशन पे जब आप जा रहे हैं, तो आपको एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू नीड सम एक्सटर्नल ट्रेनिंग एज वेल. तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में भी मैं कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, साल भर की. जो लास्ट मैंने जो क्लास ली है वो IIM लखनऊ से 1 साल के लिए स्ट्रेटेजी में, उसके 1 साल पहले मैंने IIM लखनऊ से ली है आपकी, आई वुड से ऑन CEO. So you need to also go to school to relearn some of the skill set which are required for this position. So ये लोग जनरली ना कोई लोग नहीं करते, और वो फिर पुरानी हैबिट को लेकर के जाते हैं, और फिर यहाँ से जो है they slowly stop doing what they were like doing as an executive, as the same thing they are doing at an GM, and the same or similar thing they are doing at an AVP position. प्रेसिडेंट वाले थोड़ा सा कुछ नए स्किल के साथ पहुंच जाते हैं, लेकिन टू बी एन इफेक्टिव लीडर यू नीड लाइक अनलर्न एंड रीलर्न. यस, न्यू स्किल सेट्स तो आ जाती है, बट अनलर्निंग बहुत डिफिकल्ट है. मेरे को आपको मैं सीरियसली सही बात बताऊं, जब मैं जीएम बना था तो मेरे को फिर भी मन करता था कि ना मैं शॉप फ्लोर पे जाऊं और पैकिंग लाइन पे खड़े हो जाऊं, और मेरे को डब्बे गिनने की आदत है. तो मैं बड़ा परेशान होता था कि मैं कैसे उसको रोकूं. आप समझ रहे मेरी बात, मैं कैसे उस चीज को रोकूं, मेरे को बहुत डिफिकल्टी हुई. लेकिन ये था कि मैंने रियलाइज किया कि यार इसको मतलब कि कैसे न भी कैसे खत्म करना है.
और दूसरा ना एक और चीज है कि स्ट्रेटजी, इफ यू आस्क मी स्ट्रेटजी इज ओनली फॉर द टॉप लेवल, नो, इट इज इवन फॉर द पर्सन हु इज ऑन द फोर फ्रंट, उसको भी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं पे करना है, क्योंकि स्ट्रेटजी बहुत तरीके की होती है। एक फंक्शनल स्ट्रेटजी भी नाम की कोई चीज है। तुम फंक्शनल स्ट्रेटजी करते हो, फिर उसके बाद बिजनेस स्ट्रेटजी करते हो, फिर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी करते हो, फिर रियल स्ट्रेटजी करते हो। तो इसकी भी एक हायरार्की है। तो आपको ना शुरुआत से ये गुण आपके अगर हैबिट में नहीं है और आपको अभी भी एज ए जीएम भी अगर बैच रिकॉर्ड साइन करने का मन करता है, तो आप इस हायरार्की में कहीं ना कहीं फंक्शनल स्ट्रेटजी पे ही रह जाओगे। Strategy growth. हाँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. People also feel FOMO, fear of missing out. हाँ, फिर यस, तो देखिए, फोमो में मैं एक बात बताऊँ ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, पीपल ना फॉरगेट वन थिंग। तो एक बार क्या हो गया है ना कि उनको उनको लगता है ना उनके हाथ से ना कंट्रोल निकल जाएगा। Correct. ठीक है, पहली बात तो कंट्रोल और मॉनिटर में फर्क है। आप कंट्रोल करने को जाएंगे तो यू आर गोइंग टू किल द क्रिएटिविटी ऑफ योर पीपल। आप मॉनिटर करो उनको। अगर आपको फोमो की बीमारी है, आप उनको मॉनिटर करो। और मैं मॉनिटरिंग करने का मैं आपको अपना तरीका समझाता हूँ। मैं मॉनिटर कैसे करता हूँ, आपके पास मान के चलिए एक हेलीकॉप्टर है, आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं एज ए प्रेसिडेंट, आप हेलीकॉप्टर जो है प्लांट के ऊपर उड़ा रहे हैं, करेक्ट, प्लांट के ऊपर वो उड़ रहा है। अगर सब कुछ सही चल रहा है, जैसे पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले होवर करते रहते हैं हेलीकॉप्टर, स्पेशली बाहर होवर करते रहते हैं, और अचानक से देखते हैं कि एक जगह भीड़ इकट्ठा हो गई है, फिर वो क्या करते हैं, वो हेलीकॉप्टर को वहां पर लाके ऊपर लाके खड़ा कर देते हैं और देखते हैं कि नीचे हुआ क्या है। तो आई ऑल्सो डू द सेम थिंग, मैं ला करके ऊपर देखता हूँ, फिर मेरे प्लांट में हाँ क्या चल रहा है, ये प्रॉब्लम है। देन आई कॉल द प्लांट मैनेजर, भाई क्या हो गया, बोले सर ऐसा हो गया, थोड़ा सा डेविएशन हो गया, वी आर लाइक वी विल सॉल्व दिस एंड वी विल बी आउट। फिर वापस हेलीकॉप्टर उठा करके मैं उड़ा करके वापस ले जाता हूँ। लेकिन अचानक प्लांट मैनेजर मुझसे ये कहते हैं कि नहीं बॉस, प्रॉब्लम हो गई है एंड आई थिंक देयर इज सम वेरी सीरियस इशू विद द बैचेस एंड और देयर इज एन एक्सीडेंट इन द प्लांट एंड द पर्सन इज इंजर्ड। ईमानदारी से वो मैं हेलीकॉप्टर जो है लैंड मैं लैंड करा के उधर पहुंच जाता हूँ एंड देन आई गो इनटू डिटेल्स एंड माय इंटेंट इज नॉट हाउ इट हैपेंड, माय इंटेंट इज हाउ इट विल नॉट हैपन इन फ्यूचर। अब तो जो हो गया उसे कुछ कर नहीं सकते, आगे कैसे ना हो उस पर मेरा फोकस होना चाहिए। अब जो हो गया उसको तो भाई प्लांट मैनेजर कंट्रोल कर रहा है, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड under what condition this accident happened or this incident has happened and how it is not going to happen in future. That is my role. Actually people ना कंट्रोल और मॉनिटरिंग में फर्क करते हैं। मैं मॉनिटर करता हूँ, ऐसा नहीं है मैं मॉनिटर नहीं करता, मैं मॉनिटर करता हूँ हेलीकॉप्टर में बैठकर। हाँ, हवाई जहाज में भी नहीं करता हूँ कि कभी आऊंगा ही नहीं प्लांट में ना, क्योंकि हवाई जहाज प्लांट में लैंड नहीं कर सकता, उसको एक रनवे चाहिए। मतलब एक MIS की मीटिंग चाहिए, एक रिव्यू मीटिंग चाहिए जो कि महीने के लास्ट में होगी ना, वो गलत हो जाएगा। इमीडिएट लैंडिंग चाहिए, तो वो हेलीकॉप्टर से पॉसिबल है। और हेलीकॉप्टर से कैसे पॉसिबल है कि मेरे पास काफी, हम लोग टैब्लो का इस्तेमाल करते हैं, तो लॉट ऑफ डाटा आर बीन पॉपुलेटेड। अगर आप मेरे कमरे में जाएंगे तो 1.25 मीटर का मेरे पास एक टीवी है जहां पर डिफरेंट प्लांट्स के पैरामीटर्स चलते रहते हैं एंड AI से जो है, तो मैं ऐसा नहीं, वो सारे डाटा पॉपुलेट होते रहते हैं। हमारे पास टैब्लो है, टैब्लो में सारे डाटा हम लोग को सामने से देखते हैं। हम लोग AI का भी इस्तेमाल करते हैं। AI ऑल्सो गिव्स लॉट ऑफ इनसाइट कि आपको देखना क्या चाहिए। अभी उतना ट्रेंड नहीं है, हमारे कुछ बंदे हैं जिसको ट्रेनिंग दे, बट वी लुक एट इट। मॉनिटर करो, उंगली मत करो, कंट्रोल मत करो। जो कर रहे हैं वो तुमसे ज्यादा अच्छे ढंग से करेंगे, बिकॉज दे आर एट द साइट where it has happened. So they are more educated, they know more than you. Your role is only that it shouldn't be repeated. वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ये कर लिया, आपका मतलब you are on the right direction. अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे किसने किया, कैसे किया, ये किया, तो वो गलत हो जाएगा। कैसे आगे ना हो is something what you should be like focusing. So when you say that how it shouldn't happen, so is there a process then you want to create? Yes. So इसलिए मैं ना, I'm a very big fan of Lean Six Sigma. Very big fan. It creates and it tell you the different protocol which needs to be there. कि
आपकी 5 वाई एनालिसिस होनी चाहिए। आपने 5 वाई पूछा और आखिर आपको तब तक वाई पूछता रहना है चाहिए, या व्हेन या वेयर पूछते रहना चाहिए, जब तक कि एक कांस्टेंट आंसर ना आ जाए। राइट। वहां पर आपको रुक जाना चाहिए। तो आपको रूट कॉज तक पता चल गया, आपको रूट कॉज अगर पता चल गया, 50% प्रॉब्लम सॉल्व। अब उसके इन एंड अराउंड में आपको सिस्टम बिल्ड करना है कि वो प्रोसेस दोबारा ना हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप बहुत सुपरफिशियल रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। और मैं और आप अकेले भी कुछ नहीं कर सकते। इस बात को भी आपको जो है रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन वी आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ बेल्ट्स, green belt, black belts in our organization, and you'll be like surprised. As on date, we are having nearly 1,600 belts. Wow. And out of them, I would say 150 के लगभग मेरे पास जो है ग्रीन बेल्ट है आज की डेट में, और 12 या 13 आर द ब्लैक बेल्ट। और और every year we have a target of increasing 30 green belt, and this year we are taking a pause because we want a real black belts coming. So हमने इस साल जो है ब्लैक बेल्ट्स पे नहीं इन्वेस्ट किया। और मेरी वाइफ बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात बोलती है कि अभय जो है वो ड्रैकुला है, वो जिसको भी काटता वो भी ड्रैकुला हो जाता है। और स्लोली वो अपना एक जो है बेल्ट का जो है एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है। तो आई एम लाइक क्रिएटिंग ए इकोसिस्टम, बिकॉज यू आल्सो नीड अवर top quality leaders to lead a very, I would say, very efficient and skillful workforce. क्योंकि उनको तो मैं एजुकेट कर रहा हूँ, और वो स्किलफुल होते जा रहे हैं, तो उनके ऊपर जो उनको मॉनिटर करने वाली भी जो जनता है वो भी उतनी स्किलफुल होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग जो है लीन सिक्स सिग्मा पे हम लोग बहुत फोकस करते हैं। वेरी ट्रू। क्योंकि अगर गैप रहेगा, इफ देयर इज वन बेल्ट एंड देन एक बहुत बड़ा गैप है, तो इंटरेक्शन में, कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग पोस्ट मैं आपका पढ़ रही थी लिंक्डइन पे, आई थिंक आपने कुछ कल परसों ही डाला है। मतलब मेरा क्या होता है, संडे को मैं स्टोरी डालता हूँ, बाकी दिन में मैं मैनेजमेंट के पॉइंट्स डालता हूँ, बाकी दिनों में इफ आई एम लाइक फ्री। हाँ, तो ये अभी ये संडे वाला पोस्ट था। वी ऑफन, ये स्क्रीन पे हम लोग डाल देंगे आपका पोस्ट। So post says we often mix up R&D with innovation. Yeah. But they play very different roles. Yes. R&D creates knowledge, innovation converts that knowledge into value. Yeah. So sir, इस पोस्ट के बारे में आप थोड़ा बताएं। एक्चुअली क्या है ना कि जो शॉप फ्लोर पे जो बच्चे रहते हैं, या फिर जो स्पेशली जो ऑफिसर्स रहते हैं, या जो जूनियर लोग रहते हैं, वो इनोवेशन को ना R&D के साथ कंफ्यूज करते हैं। ठीक है? वो सोचते हैं कि जो हमको R&D ने दिया है उसको हम लोगों को वैसे ही, मतलब क्या बोल सकते हैं, वैसे ही करते रहना है। उसको इम्प्रूव करने के बारे में कभी भी सोचना नहीं है। ठीक है? एक प्रीमाइस ये है। दूसरी प्रीमाइस में बोलता, बड़ी इंटरेस्टिंग है। फार्मा इंडस्ट्री की किसी भी क्वालिटी पॉलिसी को ले लो, मैं कह सकता हूँ 95% क्वालिटी पॉलिसी कहती है कि हम लोग कंटिन्यूली इम्प्रूव करेंगे। सेकंड प्रीमाइस। थर्ड प्रीमाइस, लेकिन अगर तुमने चेंज किया तो हम उसको कंट्रोल करेंगे। तो चेंज कंट्रोल आ जाता है। और तुमने अगर उससे अलग किया तो वो डेविएशन है, तुम उससे अलग नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजों में ना वो बच्चा वो कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज होकर के ये कहता है जो हमको आ गया उसको वैसे ही करते रहना है, तो वो स्टैटिक हो जाता है। ठीक है? वो एक चीज मिस कर रहा है कि जो लर्निंग आ रही है उस प्रोसेस से, जो लर्निंग कर्व आ रही है, उसको हमको यूज करके प्रोसेस को और रोबस्ट बना सकते हैं। करेक्ट। वो चेंज कंट्रोल का शाब्दिक अर्थ देख रहा है कि कंट्रोल चेंज है, वो उसको भाव बोलते ना आध्यात्मिक नहीं देख रहा है कि चेंज कंट्रोल करूंगा तो मेरा जिंदगी मतलब आसान हो जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? तो ये कहीं ना कहीं उसकी तरफ उसको मोटिवेट करने का है। पहली बात तो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर दैट ही अंडरस्टैंड्स द डिफरेंस बिटवीन द इनोवेशन एंड R&D। इनोवेशन आप भी कर सकते हो, R&D करने के लिए साइंटिस्ट है। इनोवेशन क्या होता है, वो वैल्यू क्रिएट करता है, R&D जो है नॉलेज क्रिएट करती है। आपका लर्निंग कर्व इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम
R&D से better हो जाएगा if you are collecting the data, understanding how the critical parameters are interrelated, and then you start doing some planned experiment within that and fine tuning all those, because क्या होगा R&D के टाइम पे जो हमको जो लिमिट्स देते हैं वो काफी वाइड रहते हैं, उसमें कहाँ पर हमारे प्रोडक्ट ज्यादा बेटर बन रहे हैं वो प्रोडक्शन वाला ही बता सकता है। अब वो इनोवेटिव भी लगा सकता है जो कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके प्लांट डेविएशंस लेकर के बराबर जस्टिफिकेशन चेंज कंट्रोल भर करके वो चेंजेस कर सकता है। उसकी तरफ मैं एक्साइट करूँ कि भाई ये काम तुम्हारा है, इनोवेशन R&D का काम ये नहीं है, या फिर आपके जो टेक ट्रांसफर वाली जनता उनका काम नहीं है, वो आपका काम है, क्योंकि आप देख रहे हो प्रोसेस को सबसे पास से। करेक्ट। इन लोग इनोवेशन और R&D को कंफ्यूज कर जाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कंफ्यूज कर जाते हैं। डेटा पे इनोवेशन। हाँ, आपको एक्चुअली अगर मैंने यहाँ तक देखा है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अगर प्रोडक्ट के 300-400 बैच बन गए हैं तो जो नॉलेज जो टेक्नीशियन जो कि उसको ऑपरेट कर रहा है उसके पास ज्यादा होती है बनस्पत की R&D के। अब उस नॉलेज को यूज करके आप कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्ट को और रोबस्ट कर सकते हैं। मैं वहां पर लोगों को एक्साइट कर रहा हूँ इस पोस्ट के माध्यम से। वाओ, ग्रेट। सो सर, अभी क्वालिटी यू आर टॉकिंग अबाउट, तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इज क्रूशियल but without compromising quality. So what key principles do you rely on while taking such decisions? देखिए, क्वालिटी तो अनकॉम्प्रोमाइज है, उसको तो आप मैं तो नहीं बोलूँगा कि आप कभी भी उसको ताक में उसको रखो। लेकिन क्या होता है कि आपको अपने प्रोसेस को डे बाय डे एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, आप उसको स्टैटिक नहीं रख सकते। बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आपकी कॉस्ट कैसे कम होगी? आपकी कॉस्ट कैसे कम होगी? अगर आप वेस्ट को हटाएंगे तो आपकी कॉस्ट कम होगी। अगर आप वेस्ट को हटाएंगे तो आप पुअर क्वालिटी हटा रहे हैं, हटा रहे कि नहीं हटा रहे? अगर आप पुअर क्वालिटी हटा रहे हैं, वेस्ट को कम कर रहे हैं, तो कॉस्ट इंप्रूव होगी कि नहीं होगी? इंप्रूव होगी। आप एक तरफ से कॉस्ट भी इंप्रूव कर रहे हैं, क्वालिटी भी इंप्रूव कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी जो मिसकंसेप्शन हमारे फार्मा में ये है कि अगर आपने कॉस्ट प्रोग्राम रन किया तो क्वालिटी डिटोरेट किया नहीं। आप पहली बात तो कॉस्ट कैसे कम करें इस पर थोड़ा सा आप बनाएं कि भाई वेस्ट को आप रिड्यूस करो। भाई आप कोई कॉर्नर्स मत कट करो, आप वेस्ट पर रिडक्शन पर फोकस करो, तो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ेगी, आपका रिसोर्स भी बचेगा, आपको वो होगा। तो इसको आपको बहुत बहुत क्लियर कट रखने का है। तो मेरे को नहीं लगता है कि भाई आई वुड से कि अगर अपन कॉस्ट कम करेंगे तो फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप वेस्ट रिड्यूस करिए, आप उसको ऑप्टिमाइज करिए। अगर आप वेस्ट रिड्यूस नहीं करेंगे तो क्या चीज बदल जाएगी आपको खुद को पता नहीं है। तो जो एक साइंटिफिक क्यूरोसिटी है आप अपने प्रोसेस में बना कर रखिए, एक रेगुलेटरी गार्ड रेल में विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी आप यू कीप ऑन चेंजिंग। क्योंकि अगर आप स्टैटिक रहेंगे तो आपका इकोसिस्टम जो है चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हर साल 7% 7% का इन्फ्लेशन होगा, करेक्ट? सही है। आपका 5% की प्राइस की वेरिएबिलिटी हो जाएगी, कोई भारत सरकार ने बाहर मतलब कि जो MRP है वो कंट्रोल है, लेकिन इनपुट तो कंट्रोल नहीं है। प्लस अगर इनपुट कंट्रोल भी नहीं है तो उस पर प्राइस में इतना वेरिएशन हो जाता है। तो 5% वो जोड़ लिया तो करीबन 12%। तो हम लोग ये टारगेट करते हैं कि 12% हम लोग जो है ये जो ऑफसेट हो रहा है उसके इक्विवेलेंट जो है हम लोग प्रोग्राम्स आइडेंटिफाई करें। ओके। सो दैट कि हम हर साल रेलेवेंट बने रहें। ठीक है, पहला। दूसरा, आप स्टैटिस्टिक्स का पूरा लेवर लीजिए। आपके बैच साइज कितने होने चाहिए, आप कितने मतलब कि वॉल्यूम अगर आपका है तो आपको कैसे अपना कैपेसिटी प्लान करना चाहिए। मैं आपको सीरियसली सही बात बताऊं, जो मेरे को बैच साइज सिखाया वो आपके इसी शहर ने सिखाया। मैं बैठा हुआ था IIM अहमदाबाद में एक उसमें
तो उन्होंने मेरे को एक चीज सिखाई जिसको हम लोग डिग्री ऑफ लेवरेज बोलते हैं। डिग्री ऑफ लेवरेज में उन्होंने मेरे बताया कि तुम्हारे जितने फिक्स्ड कॉस्ट है अब है, उतना ही तुम जो है उसको ऑफसेट करने वाला बैच साइज रख कर आओगे तो सबसे तुम्हारा ऑप्टिमम है। उसके बाद जितने तुम टैबलेट एक्स्ट्रा बना रहे हो वो तुम्हारी प्रॉफिटेबिलिटी को एकदम एक्सपोनेंशियल कर्व में ले जाएगा। और मैंने सोचा यार बैच साइज बढ़ाने में कौन सा क्वालिटी का इशू आ रहा है, अनलेस एंड अनटिल प्रोडक्ट उतना सेंसिटिव ना हो, काफी रोबस्ट प्रोडक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आई टुक इट वेरी, मतलब क्या बोल सकते हैं कि उसको मैं जाके तुरंत उसको एक्सपेरिमेंट किया और मेरे को इमीडिएट बेनिफिट आने शुरू हो गए उससे, क्योंकि सारे फिक्स्ड हो गए। और उन्होंने दूसरी बात बोली कि भाई क्वालिटी को मत हाथ लगाना, तुम वेरिएबल कॉस्ट की तरफ धीरे धीरे भागो कि क्या क्या तुम कॉस्ट वेरिएबल कर सकते हो या फिर जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि क्वालिटी खराब हो जाएगी अगर आप कॉस्ट में अगर आप काम करते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आपने जो अपना क्रिएटिव थॉट या क्रिएटिव माइंड है उसको सिर्फ इस स्टेटमेंट से ब्लॉक कर लिया है, कॉस्ट पे यस बस कर सर। यस। सो सर अभी कोई एनी क्लोजिंग रिमार्क्स यू वांट टू ऐड? या सो देयर इज वन मोर। क्या हो रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। द बिगेस्ट कंफ्यूजन इन इंडस्ट्री today is how to build a quality culture in the organization. Everybody is saying that we have to build the quality culture, but how? Like I've been experimenting on this, and my learning is start improving the competence of your people from top to bottom. When you are improving the competence of the people, I say that there is a clarity coming into them, because right now उनको पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। आप उनको बताएंगे ये करने का है और ऐसे करने का है और इसको थोड़ा इम्प्रूव करो, तो आप इम्प्रूव तभी कर पाओगे ना कि जब आपको वो पूरा प्रोसेस पता हो। बात में चंडीगढ़ में मेरा घर है, बाकी लोग दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में उनको 6 घंटे लगते हैं, मेरे को 5 घंटे लगते हैं। उसका रीजन ये कि मेरे को रोड पता है, मुझे ये पता है कि कौन से रोड में कितने स्पीड में मैं गाड़ी भगा सकता हूँ, कॉम्पिटेंस तो मेरे को पता है। तो अगर आपको प्रोसेस पता रहेगा तो आप करेंगे। तो वो सबसे पहले वो प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। जो प्रोसेस कर रहे होते तो क्लैरिटी कम्स इन देयर माइंड। When clarity comes in their mind, then what suddenly happens, they start building competence over that process. Competence आता है, conviction आ जाता है कि समय हो सकता है, ये करके दिखाएंगे हम आपको। उसके बाद में कन्विक्शन के बाद में उनका जो अगला स्टेप आता है मालूम है क्या? अगला स्टेप आता है कि आई वुड से कि करेज आ जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता है। मेरे को पूरा प्रोसेस पता है, मैंने इस पे काम किया है और मुझे पता है कि ये होता है। जैसे मुझे पता है कि अगर मेरे को यहाँ से अगर एयरपोर्ट जाना है तो कितने जगह पे जाम लगेगा। तो मैं काम करता हूँ कि इंस्टेड ऑफ दिस इज द टाइम एंड दिस इज ये, तो 15 मिनट मेरे को पहले निकलना चाहिए। एंड दिस इज समथिंग विच आई एम लाइक गिविंग अ वेरी टिपिकल एग्जांपल। तो होता क्या है कि हाँ ये हो जाएगा, मैं पहुंच जाऊंगा, उससे करेज आ जाता है। जब उसको करेज आ जाता है ना तो ही कैन से नो, ये नहीं हो सकता ना, नॉट पॉसिबल। आप कितने बजे निकल रहे हैं? 2 बजे। आपकी फ्लाइट कितने बजे? 3 बजे। पहुंच नहीं सकते। He will with courage say that this batch will not release. I will not run this batch. I know that this is going to fail. उसको करेज आ जाएगा। He will start saying no. नीचे वाला बंदा बोलेगा no. And that is the point. वो एंड पॉइंट है कल्चर पे। वो ना बोलना शुरू कर दे, आपका कल्चर बिल्डअप होना शुरू कर दे। कल्चर बिल्डिंग इज समथिंग विच टेक्स टाइम। Unless and until you start today, it is going to take at least 6 to 7 years. 5 साल नहीं, उससे ज्यादा, क्योंकि परकुलेट होने में टाइम हो जाता है। और इसके लिए एक चीज मैंने किया है कि भाई कितनी जनता जो है आज की डेट में इंगेज्ड है, क्योंकि उसमें टाइम लग रहा है। अगर डे 1 से सारी जनता इंगेज हो जाए तो कल्चर उतना ही फास्ट बनेगा। आप समझ रहे मेरी बात? तो ये एक हायरार्की है, ऐसे ही क्वालिटी कल्चर बिल्ड करेगा। अदरवाइज अभी क्या हो गया,
If people have started writing SOPs on quality culture, it is foolish. It is purely foolish. They have started creating documents on that. It's foolish. This is something which we should learn from the engineering industry. Until and unless you don't work. Yeah. Very true. So until and unless you don't go on the ground floor, work on it, know the process, get the clarity, तभी I think after a certain point you will also think on it कि अभी इसमें क्या नया कर सकते हैं. करेक्ट. तो गेम्बा की भी एसओपी लोगों ने बना दी है, लेकिन आपको मैंने इसलिए बोला नहीं कि हवाई जहाज में मैं उड़ता हूँ. मैं हमेशा बोलता हूँ मैं हेलीकॉप्टर में उड़ता हूँ, क्योंकि अगर जरूरत रहती है तो हेलीकॉप्टर को नीचे सतलाना ही पड़ेगा. कोई ऐसी फेटल प्रॉब्लम हो गई है तो देन वी नीड टू लाइक अंडरस्टैंड. तो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Great, sir. हम लोग let's do a last rapid fire section. Yeah. One book that changed the way you lead. क्या था उसका नाम? एक्चुअली था गुड इज द क्या गुड किल्स द ग्रेट. आई एम लाइक फॉरगेटिंग था. Good kill. मेरे को याद नहीं है ना, मतलब कि क्या उसमें बुक में ऐसा लिखा हुआ था कि जो आप बोलते हैं ना कि गुड, वही ग्रेटनेस को किल करता है. अच्छा. हाँ. तो वो राइटर का नाम भूल गया. एंड ये मैंने आज से कम काफी दिनों पहले पढ़ा. उसमें बहुत दिनों पहले पढ़ा था. तो उसमें हुआ क्या कि वो ये बोलता है कि आप अगर आपने मान लिया सब कुछ सही चल रहा है तो वो आपकी ग्रेटनेस का ना वही किलर है. हाँ, वो दैट किल्स द गुड. इज गुड विल इफ यू फील दैट सब कुछ सही है तो सब कुछ सही चल रहा है तो कुछ भी सही नहीं चल रहा है. या फिर आपको जो ग्रेटनेस का वो जो सबसे बड़ा डेटरेंट है. That book changed me. Then I read a book on TPM and Toyota Production System, TPS. फिर उसने मेरे को Lean Six Sigma की तरफ ले गया. And this is how there are two books I will say that are been named. I'm really very sorry I don't remember the name, but yes, these two books. It's okay. We'll put it on the screen. Yeah. Tea, coffee, or chai on the shop floor. On I would say across my career, so shop floor was like till I would say I was a GM. But now tea is something which I like love, because there is one very interesting thing that you need to be like creative every time. So yeah. tea, yes. Tea person. I'm a tea person, yes. शॉप फ्लोर में अगर मैं जाऊंगा तो वही मैंने फिर बोला ना, अगर मैं शॉप फ्लोर में आज के रेट में जाऊंगा तो फिर मैं उनको परेशान करूंगा. तो बेटर आप ये अगर इससे बेटर के चाय पियो और अपनी क्रिएटिविटी को एकदम लाइव रखो. Great. If not pharma, what career would you have chosen? I would have been like I would say that I would have been an engineer. Yeah. Engineer. Yeah. Okay. So thank you, Abhay sir. Thank you for coming on this podcast for Pharma Now. And it was really great talking to you. Thank you so much. Same here. Thank you so much. Thank you.